Good morning, students. Students, I hope you and your family is safe at home. So, start with our today's section. So, today we will see a maths revision. We'll do a maths revision. In previous video, we had already done the revision of the maths construction lesson. Now we'll do a revision of joint bar graph, and also we'll do a revision of construction. So it will be more easy for you if you have forgot how to do a construction sums. We'll see a one or two sums of joint bar graph, that how we can draw a joint bar graph. It's very quite simple. So we will see it, and after that we will see the lesson construction also, do 1-2 sums of that. So let's do, first we will see a joint bar graph. So what is joint bar graph? When we joined it, means it's, see, we can see here, this is joint bar graph. We had joined two graphs. There are two, we are telling about the two things. It may be person or anything, marks or anything. We are telling about two things. We join two things, so we call it a joint bar graph. Now we will see one sum of that. So let's see. So we will see this sum. In this, what they had given, the number of boys and girls in a school is given. What it given, the number of boys and girls. This is the number of boys and girls in the school is given. Draw a joint bar graph to show their information. So we have to draw a joint bar graph in which we will show the information. So what they had given, classes, means which classes, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th classes. Boys, how many boys are there? 52 boys in 5th class, 68 boys in 6th class, 67 boys in 7th class, 50 boys in 8th class, 62 boys in 9th class, 60 boys in 10th class. And girls, 57 boys in 5th class, 63 girls in 6th class, 64 girls in 7th class, 68 girls in 8th class, 62 girls in 9th class, and 64 girls in 10th class. So how many boys and girls are there, in which class, particular class they had mentioned. So we have to draw this, show this all in a one joint bar graph. So what are the steps of drawing a joint bar graph? On the graph paper, draw the x-axis and y-axis and their points of the intersection. What we have to draw, x-axis and y-axis. So we have to draw it, axis and y, and their joint of intersection. So where they we have to show that by showing 0. Where they had intersections, we have to show that. Keeping the distance between two sets of joint bar equally, show the class on x-axis. We have to keep equal distance, means we have leave one, means for here we have use 1 centimeter, for here we have to use 1 centimeter. We have to show that. Choose a scale for the y-axis. For example, for y-axis we have to choose a scale, means how much we will use. For example, how 5 students, number of students. Here we will show a number of students. How many number of students are there? So we have to show here. So see here, they had given 52, 68, 67. So we can take a one line has a one boy, second line as a second boy. So here one box completes with 10 boys, right? Means 10 numbers. देखो मैं आपको बता देती हूँ. एक लाइन मतलब एक नंबर, दो लाइन मतलब दो नंबर. तो हमें सिर्फ हम एक तो नहीं ले सकते ना, तो हम क्या करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. हर एक लाइन पे क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. आप देख सकते 60 इज़ द लास्ट नंबर, 67, 68 इज़ द लास्ट नंबर. तो हम क्या 70 तक लेंगे. तो हमें क्या दिखाना है पहले. फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 गर्ल्स और बॉयज़. गर्ल्स और बॉयज़ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स. तो स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. हमने कितना लिया, 10 स्टूडेंट्स, 20, 30, 40, 50, 60, 70. और जो इधर लाइन होगी वो 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ऐसा होगा. तो हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल
दिखाना है वाई एक्सेस कितने स्केल, मतलब वन स्केल कितने कितना स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो दिखाना है. मार्क्स द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑन वाई एक्सेस, तो मार्क करना है, मतलब 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 30, 40, 50, 60, 70, आपको जितना चाहिए. ज़्यादा मत लो क्योंकि हमें सिर्फ 68 लास्ट नंबर है, तो हम 70 ले सकते. उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, यूजिंग द स्केल वर्क आउट द हाइट of columns required to show the numbers of boys and girls in each classes, using different columns to show the different bars in each set. तो हमें क्या करना है, अभी देखो यू स्केल यूज़ करके हमें वर्कआउट करना है कितना हाइट कॉलम्स, मतलब जितना है वो हमें देखना है. तो हम क्या करेंगे, पहले क्या बताए, देखो क्लासेस 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे हम क्लासेस लेंगे वाई एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हमें इसका स्केल दिखाना है. इसका स्केल दिखाना है, मतलब बॉयज़ कितने, गर्ल्स एक क्लास में कितने बॉयज़ गर्ल्स है वो दिखाना है. तो यहाँ पे हम लेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 तक ही दिया है तो हम 10 तक ही लेंगे. यहाँ पे 10 तक दिया है क्लासेस, तो हम 10 तक लेंगे. उसके बाद देखो बॉयज़ और गर्ल्स का दिया है, तो हम बॉयज़ को कैसे लाइट ब्लू में लिया है, गर्ल्स को डार्क ब्लू में. अब देखो बॉयज़ इन 5th क्लास, हमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, और यहाँ पे ये वाला पूरा 1 सेंटीमीटर हो गया, ये जो पूरी लाइन है वो 1 सेंटीमीटर हो गई. फिर ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के हमें लेना है. तो इसका जो मतलब ये पूरा बॉक्स है, राइट, इसका तो आधा होगा वो गर्ल्स का होगा, आधा होगा वो बॉयज़ का होगा. तो एक 1 सेंटीमीटर में हमें 2 ग्राफ दिखाने हैं, बॉयज़ के और गर्ल्स के. तो ऐसे ही हम इधर देखेंगे, पहले के दिया है देखो 5th स्टैंडर्ड, बॉयज़ कितने हैं 52 और गर्ल्स 57. तो पहले बॉयज़ का है लाइट ब्लू बॉयज़, तो बॉयज़ का कितना बताया है 52. तो यहाँ पे 51, 51, 52, 52 पे एक लाइन मारेंगे. गर्ल्स का कितना है 57, 52, ये 55 हो गया, ये वाली लाइन 55 हो गई, थोड़ी सी डार्क रहती है वो 55, 56, 57, 58, 58 पे लाइन मारेंगे हम. उसके बाद इन दोनों लाइन को ऐसे ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि बॉयज़ का आप कलर तो नहीं दिखा सकते, तो आप ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते थे कि बॉयज़ इज इक्वल टू नॉर्मल कॉलम, गर्ल्स इज इक्वल टू, गर्ल्स में आप ऐसे 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 मार्क कर सकते थे, मतलब जो ब्लैंक कॉलम है वो बॉयज़ का है, और जहाँ पे ऐसे लाइन के वो गर्ल्स का है. तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, या तो बॉयज़ के यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट ले सकते हैं. तो आप जब ग्राफ निकालेंगे, अभी यहाँ पे एग्जांपल हमने ये ले लिया, तो बॉयज़ का क्या लिया है हमने, डॉट डॉट है, तो बॉयज़ का लाइट ब्लू है, तो यहाँ पे आप ऐसे डॉट 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 निकालेंगे. उस गर्ल्स का लाइन लिया है तो ऐसे लाइन आप चाहिए तो वैसे मेंशन. अभी यहाँ पे तो कलर दिया, आपके पास तो कलर नहीं होगा तो आप वैसे मेंशन कर सकते हो. तो अब सेकेंड वाला देखते हैं, 6th क्लास, बॉयज़ कितने 68, गर्ल्स 63. बॉयज़ 68 है तो यहाँ पे 60, 65, 66, 67, 68, तो 68 पे लाइन मारेंगे. और गर्ल्स 63, तो 60, 61, 62, 63, तो 63 पे हम लाइन मारेंगे. उसके बाद ये दोनों को ज्वाइन करेंगे, सेम आगे के करना है. तो इस तरह हम बायोग्राफ पूरा दिखा सकते हैं. आपको लिखना है स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कितना है 10 स्टूडेंट्स, तो हमें दिखाना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, सब जगह 10 का डिस्टेंस छोड़ा है हमने. फिर बॉयज़ का हम क्या दिखाएंगे, गर्ल्स का क्या रखेंगे जिससे समझ में आ जाएगा कि ये गर्ल्स का है बॉयज़ का है. तो यहाँ पे ये भी लिखना है गर्ल्स कॉलम करके, यहाँ पे आपको जो भी डिज़ाइन बनाएगी वो, और गर्ल्स का जो है वो लिखेंगे. फिर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे 5th क्लास. और यहाँ पे 2 एरो करना इम्पोर्टेंट है, दोनों लाइन पे यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 0 फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होता है ऐसे. यहाँ पे एक्स एक्सेस लिखने का, यहाँ पे वाई एक्सेस लिखना कंपलसरी है. और इस तरह आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो जॉइंट ग्राफ का तो हो गया. अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन के 1-2 सम्स करके सॉल्व करके देखते हैं. तो आपको फिर आप
और ट्राई कीजिए सम्स, आपको इजी होगा एग्ज़ाम में। ओके, तो ये तो हो गया जॉइंट बार ग्राफ। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है। इन ट्रायंगल STU, ट्रायंगल इन STU, ST इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, TU इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, SU इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब ट्रायंगल है STU, ST कितना है 7 सेंटीमीटर, TU 4 सेंटीमीटर एंड SU 5 सेंटीमीटर। तो हम ड्रॉ करते हैं, वेरी सिंपल। पहले क्या करेंगे, ST कितना है 7 सेंटीमीटर, राइट। तो हम 7 सेंटीमीटर का निकालेंगे। ST 7, ST पहले TU लेते हैं, पहले नॉर्मल बेस निकालते 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का हम लाइन मारेंगे, नीचे लेते लाइन क्योंकि शायद से बड़ा आ जाएगा, सॉरी। लाइन नीचे लेते हैं। पहले क्या बोला है, TU 4 सेंटीमीटर, तो हम पहले TU 4 सेंटीमीटर का निकालते हैं। TU है वो 4 सेंटीमीटर का निकालेंगे। TU 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम कंपास लेंगे। TS 7 सेंटीमीटर बोला है, तो हम पहले 7 सेंटीमीटर का लेते हैं। देख सकते हैं परफेक्ट 7 सेंटीमीटर का लिया हमने। फिर यहाँ पे एक ऐसे मार्क करेंगे, यहाँ पे रख T के पॉइंट पे रख के एक मार्क करेंगे, और SU 5 सेंटीमीटर। तो U पे रख के और एक मार्क करेंगे, यहाँ पे आता है मार्क। पहले 7 सेंटीमीटर का फिर से लेते हैं, थोड़ा नीचे कर देते। अरे 5 सेंटीमीटर इतना है, तो कैसे है कि यहाँ पे T को मैच करेंगे और यहाँ पे U को। ये कौन सा है, S। तो ST 7 सेंटीमीटर, SU 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा STU का एंगल। पहले हम क्या करें, रफ में निकालेंगे। STU पूछा तो ST 7 सेंटीमीटर, TU 4 सेंटीमीटर और SU 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला तो हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। पिछले वाले सम्स में हमने सिर्फ सेंटीमीटर्स देखे, अभी हम देखेंगे एंगल्स भी देखेंगे। एंगल्स का करेंगे 90 एंगल का। तो यहाँ पे PRS, तो RS कितना है 5.5 सेंटीमीटर। फिर RP 4.2 सेंटीमीटर और R 90 है। पहले हम क्या करेंगे, पहले बेस निकालेंगे, जो नीचे का बेस है वो निकालेंगे। मतलब R कितना है 5.5 सेंटीमीटर, RS 5.5, तो 5.5 सेंटीमीटर निकाली RS 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम R का 90 डिग्री लेंगे। पहले हमने 90 डिग्री लिया। RP 4.2 सेंटीमीटर,
लेंगे, ऐसे 4.2 लेंगे। तो परफेक्ट 4.2 हो गया। एक नॉर्मल यहाँ पे एक आर्क निकालेंगे 4.2 का, मतलब इसको ज्वाइन करेंगे, मतलब ये पॉइंट क्या आ गया P, तो PS को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये 90 डिग्री और ये 4.2 सेंटीमीटर हो गया। बहुत इजी है, हम एक्चुअली इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये लिमिटेड नहीं है। तो ठीक है, हो गया ये आपका सेकंड वाला सम। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए सम्स देती हूँ, आप पहले एक नोटबुक में नोट कीजिए, उसके बाद ये सम्स आप खुद सॉल्व करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोटो सेंड कीजिए। मैं आपको कंस्ट्रक्शन और एक ग्राफ का क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क में, तो आपको वो करना है। तो पहले आप ये वाले जो सम्स है, 4 सम्स मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, आप पहले एक नोटबुक में लिख के रखिए, उसके बाद एक एक करके सॉल्व करके मुझे मेरे नंबर पे सेंड कीजिए फ़ोटो। तो पहला वाला कौन सा है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल AB इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, BC is equal to 4.3 सेंटीमीटर एंड एंगल B is equal to 40 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, पहले ABC निकालेंगे, फिर BC मतलब जो बेस है 4.3 सेंटीमीटर वो वाला लिखेंगे। अब भी हमने सेम किया, सेम यहाँ पे किया, ये वाला जो है हमने सेम किया, यहाँ पे 90 डिग्री था, बेस था और 2 दिए थे, सेम हमें यहाँ पे करना है। आपको क्या करना है, पहले जो बेस है 4.3 सेंटीमीटर का निकालना है, उसके बाद 40 डिग्री एंगल करना है, उसके बाद AB 3.9 सेंटीमीटर पे आर्क करना है और इसको मतलब AB हो गया तो AC को हम ज्वाइन करेंगे। सेकेंड वाला ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू PR 6.5 सेंटीमीटर, एंगल मेजर एंगल PQR 90 डिग्री, मतलब Q 90 डिग्री है, QR 4.3 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करेंगे, हम जो नॉर्मल बेस है मतलब QR 4.4 सेंटीमीटर का QR पहले निकालेंगे, उसके बाद Q 90 डिग्री निकालेंगे, सेम ये वाला दोनों सेम ही है, सिमिलर है कुछ। इसके बाद हमें क्या लेना है, ट्रायंगल XYZ, XY इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, YZ इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, XZ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने जो पहला वाला सम किया सिर्फ सेंटीमीटर का, यहाँ पे एंगल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, YZ पहले बेस 3.2 निकालेंगे, फिर XY 4.4 सेंटीमीटर पे एक यहाँ पे Y पे रख के मार्क निकालेंगे, उसके बाद XZ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर Z पे रख के एक आर्क निकालेंगे और दोनों को ज्वाइन करेंगे, जो हमने पहले वाला किया। दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो हमने पहले वाला किया वो सेम है, पहले बेस निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे रख के एक आर्क, यहाँ पे रख के एक आर्क, फिर जो पॉइंट आएगा उसको दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो सेम है वो वाला भी। और फिर लास्ट वाला ये जॉइन बार ग्राफ का है, प्रैक्टिस से 31 सिक्स्थ क्वेश्चन, वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है गांधी जी का, महात्मा गांधी और गुजरात का, नो सॉरी महाराष्ट्र और गुजरात का है कुछ, हाँ महाराष्ट्र और गुजरात का है वो वाला सम्स, लास्ट वाला सिक्स्थ क्वेश्चन, सम 3.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, पेज नंबर 54 पे है, वो वाला आप सॉल्व करेंगे और आप मुझे मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। अभी आप ये नोट कीजिए, एक नोटबुक में आपको मैं थोड़ा टाइम देती हूँ 2-3 मिनट, तब तक आप जल्दी से नोटबुक में ड्रॉ करें, या तो इसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट निकालें ये लास्ट वाले का और आप सम सॉल्व करें।
ओके, तो आप स्क्रीनशॉट निकालें, फिर उसके बाद आप नोटबुक में लिख लीजिए। इसका एक फ़ोटो निकाल के, स्क्रीनशॉट निकाल के आप बाद में नोटबुक में लिख देना। ओके देन बाय। तो हमने आज रिवीजन किया, जॉइंट बायोग्राफ देखा और कंस्ट्रक्शन के 2 सम्स देखे। सिमिलर सम्स मैंने आपको होमवर्क में दिए है, ये सम आप सॉल्व करें और जो मैंने सम किए वो खुद ट्राई करें, तो ये सम करते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, ओके बाय देन, टेक केयर।